मेरा पुत ना मरना, मैं मर जाती अपनी पुत दी ममता। इस टाइम टीम पुकार पहुंची है शेखुपुरा का इलाका लेबर कॉलोनी में, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास हुजूम है और हर आंख अश्कबार है। मोहम्मद अरसलान शादी हुई, 1.5 साल शादी को गुजरा, अल्लाह ताला ने बेटा अता किया। उस बेटे का नाम मोहम्मद अहमद रखा गया और इस बच्चे की उम्र 2 माह है। इस 1.5 साल के अरसे के दौरान बहू के अपनी देवर के साथ ताल्लुकात कायम हो गए और दोनों ने मिलकर मोहम्मद अरसलान के गले पर छुरी फेरी और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला। जब गले पर छुरी फेरी गई तो मोहम्मद अरसलान ने हिम्मत न हारी, उठा और उठकर कमरे से बाहर आया, लेकिन जान की बाजी हार गया। ये सारी कहानी क्या है? माँ आज भी खून के आंसू रो रही है, उस पोते को संभाल रही है जिसकी उम्र 2 माह है और ये कहना है कि मुझे इस बच्चे के अंदर अपना बेटा नजर आता है। मैं खुद रहूं या ना रहूं, मैं इस बच्चे को सीने से लगा के रखूंगी। चलते हैं और उस घर में उनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, हमें बहुत दुख है, जो हुआ गलत हुआ है और माँ को उस चीज का सब्र नहीं आता। मेरा ना मरदा, मैं मर जाती, मेरा पुत ना मरदा, मैं मर जाती अपनी पुत दी ममता। अल्लाह तानु सब्र देवे, अल्लाह तानु हौसला देवे। माँ जी की कुछ झगड़ते रहंदे सी दोनों भरा आपस च, की होया सी? झगड़ते ही रहंदे सी, बस इन्ना ही, इदां ही लड़ाइयां करते रहना। शुरू तो इंज ही करते सी? शुरू च नहीं सी करते। अच्छा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਧੂਲਣ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਨਾ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਾ ਲਏ। अच्छा माँ जी, फिर शादी तो बाद झगड़े शुरू हुए सी? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। शादी तो 3-4 महीने बाद। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ में ओले छपे, चूरी छपे ना, आपस में प्यार मोहब्बत करन लग पए। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। ठीक मैं है। कुड़ी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। बहुत अच्छी बात है। ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਾ। हाँ जी, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। बड़ों को बताना चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। नहीं बताया? हाँ, नहीं बताया। अच्छा, मुलाकातें फोन पे गपशप पूरी होने लग हाँ, गई। करते रहे। आपको पता नहीं चला? मैं ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਾਵਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਚਲ ਫੇਰ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। सही। ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ठीक है। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। आप लोगों ने भी पी ली? हाँ, सबने पी ली? हाँ जी, पी ली। ठीक है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। नींद आ रही थी? ਨਹੀਂ, ਨੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਧੀਏ। फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਪਿਆਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਠਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਠਾ ਕੇ? ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਉੱਠੀ, ਅੰਮੀ ਉੱਠੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਉੱਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਬੂ ਉੱਠੋ। ਅਲੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਲੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਐਸ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੱਸਿਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧੀਏ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਦਾ, मैं मार जानी, मेरा पुत ना मरदा। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है SHO हाउसिंग कॉलोनी इमरान खालिद डोगर साहब, जिन्होंने इस केस के तमाम कानूनी मामलात और इन्वेस्टिगेशन की है।
क्या मामला है, असल कहानी क्या है, ये हम इमरान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो केस है जी इस हवाले से बताइए कि असल कहानी क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 15 पे इतला मिली कि एक बंदे की डेथ हो गई है, किसी नामलूम शख्स ने उनका गला काट दिया है। ठीक है। तो जैसे ही ये इतला मिली तो हमारे डीपीओ साहब, डीएसपी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर हमें मौके पे पहुंचने की हिदायत की। डीएसपी साहब भी आ गए, चूँकि बहुत ही सीरियस और अंदोनाक वाक़या था। बिल्कुल। तो जैसे ही हम मौके पे गए हैं, हमारी फोरेंसिक टीम भी आ गई, हमने शवाहद इकट्ठे करने शुरू किए। तो हालातों वाक़यात से ये ऐसे लग रहा था कि ये कोई घर के अंदर का ही मामला है। ठीक है, ऐसे मतलब वाइब्स ऐसी आ रही हैं। ऐसी आ रही थी। ठीक है। तो जैसे ही हमने मज़ीद तफ्तीश शुरू की तो उसमें जो कंप्लेनेंट थे, जो मकतूल हैं, उनके जो वालिद थे, उन्होंने भी हमारी बात की तायीद की। उसमें हुआ कुछ यूँ कि इसकी मकतूल की जो बीवी निमरा, उसका किरदार कुछ मशकूक था। तो अभी जो उसका देवर है फैसल नाज, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। ठीक है, शौहर के होते हुए। ठीक है। और इसी वजह से घर वालों ने फैसल नाज को, जो उसका देवर है, उसको घर से निकाल दिया हुआ था। ठीक है। अब जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, वो शाम को जो बज़ाहिर अभी लग रहा है कि उसको मिलने के लिए आया, उसका शोहर सोया हुआ था, वो जाग पड़ा और जैसे ही वो जागा है, उसने वो देखा उसकी बीवी मौजूद नहीं है। पता जो ही कि उसने देखा कि वो छत पे है और साथ में उसका भाई है, और वो भाई जिसको ऑलरेडी घर से निकाला हुआ। तो इसने अपनी खिफ़त, शर्मिंदगी मिटाने के लिए और उस सूरत हाल को चूँकि फिर वो फेस नहीं कर सका, ठीक है, तो उसने छुरी से उसका गला काट दिया। ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश में जैसे हमने देखा, शवाहद इकट्ठे किए, मुल्ज़मान ने अपना इकरार जुर्म भी कबूल किया। ठीक है। तो उनको हमने गिरफ़्तार किया और अब उनको हम चलान के लिए अदालत में भिजवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ताकि उनको अपने किए की सज़ा मिल सके। इमरान साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि इनके ताल्लुकात थे, जाहिर है वो कोई भी शौहर है वो बर्दाश्त इस चीज़ को नहीं करता, तो ये ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात दरीना थे या अब शुरू हुए थे? नहीं, ये दुरीना थे उनके, शादी के बाद के, लेकिन है काफ़ी पुराने इनके, तकरीबन कुछ साल के राउंड अबाउट का है अरसा इनका। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।